Hello everyone, class 8 chapter number 11 mensuration, and today we will start 11.4 exercise. And before 11.4 let's discuss its formulas. So in this exercise we will discuss about the volume. Okay, so volume of three things, cube, cuboid and cylinder. Volume of cube is side multiply side, or we can say a cube if one side is a, right? A cube. And volume of cuboid, length multiply breadth multiply height. And volume of cylinder is pi r square h, where r is radius and h is height, right? So let's do exercise. First question is, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area, in which situation volume? So first is to find how much it can hold. Here we can see everyone कितना हम hold करता है उसमें. So let's discuss here. How much it can hold, so it's volume, right? मतलब कि कितना उसके अंदर मतलब हम भर सकते हैं, right? So that is volume. और surface area होता है उसका बाहर वाला. Number of cement bags required, so plaster उसको बाहर plaster करना है, so that is surface area. And to find the number of smaller tank that can be filled with water from it, फिर again water उसके अंदर fill करना है, so that is volume. ठीक है, इसमें हमें सिर्फ यही बताना था कि उसमें volume निकालना है, surface area है कि वो volume है, right? These are the thing. So next question, second is, diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter, height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with the greater volume also has a greater surface area. So everyone, clearly we can see इसका हमारे पास जो होगा वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका हमारे पास रेडियस बड़ा है. So let's start it. So हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फिगर ये है, सेकंड ये है, right? Yes, we can say volume of cylinder B is greater as radius of that cylinder is greater than cylinder A. इसका रेडियस बड़ा है इसीलिए इसका वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा. So let's find out diameter of cylinder A. इसका सिलेंडर का डायमीटर था 7, रेडियस हाफ होता है, so radius is 7/2 centimeter, height is 14 centimeter. So volume of the cylinder is pi r square h. Pi is 22/7, r is 7/2, square मतलब 7/2 multiply 7/2 multiply h. So everyone, कट कर सकते हैं हम यहाँ पे नंबर्स को. Let's cut it. ये हम यहाँ पे 7 को 7 से कट कर देंगे, राइट? और यहाँ पे हम ये कट कर सकते हैं 11, और यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट? उसके बाद ये आ जाएगा 7 और ये आएगा 1. So 11 multiply 7 multiply 7, it will become 539 centimeter cube. So this is the volume of cylinder A. So let's find the volume of cylinder B. So volume of diameter of cylinder B is 14 centimeter, radius is half, so radius is will become 14/7 centimeter. Height of cylinder is 7 centimeter. Volume of cylinder B will become, what is the area? Formula क्या होता है volume का? Pi r square h. Pi 22/7, r is 7 here, 7 multiply 7, and h is also 7. So we can clearly see this 7 can be cut by this 7. 7 multiply 7, 49 multiply 22 will become 1078 centimeter cube. So ये B था, मैंने पहले कहा B का ज्यादा होगा क्योंकि उसका डायमीटर, उसका रेडियस बड़ा है. सो राइट, इसका था हमारे पास 539 और इसका हमारे पास क्या आ गया 1078. सो क्लियरली B का वॉल्यूम ज्यादा है. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए. एवरीवन देखो ध्यान से, उसके अंदर वाटर फिल करना है, तो सिलेंडर के जो ऊपर है, जैसे कि हमारे पास ये ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नहीं है, तो हमारे पास एक तो उसका पूरा सरफेस एरिया है और एक नीचे क्या है हमारे पास सर्कल. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया विद प्लस द बॉटम. ठीक है, टॉप हमें नहीं लिखना, तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे? सरफेस का एरिया होता है 2 pi r h और नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया? pi r स्क्वायर. ठीक है, सो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. इसमें हमने क्या किया, मैंने पाई आर कॉमन निकाल लिया, दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल लिया. यहाँ बचा 2 और h, यहाँ बचा r. सो वैल्यूज पुट की. ठीक है, सिलेंडर A की, तो हमारे पास पाई 22/7, A का सिलेंडर का रेडियस 7/2 है और हाइट 14 है. ठीक है, तो 2 multiply 14, यहाँ पे 28 आ गया. यहाँ पे क्या किया हमने, 7 कट बाय 7 एंड 2 को कट कर दिया ये 22 से 11. सो 11 multiply 28 plus 7/2, फिर 28 plus 7/2 will become 63/2, राइट? यहाँ पे कैसे सॉल्व किया इसको? 28 plus 7/2 एवरीवन, 2 LCM ले लिया, राइट? देन यहाँ पर कुछ नहीं है. ठीक है, 28 multiply by 2, इस will become 56 plus 7.
इट विल बिकम 63/2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इस दोनों को सॉल्व करके 63/2, 11 मल्टीप्लाई 63/2 विल बिकम, पॉइंट्स में आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। नाउ वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला अगेन वही, सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया। ठीक है, अगेन सारा कुछ हमने वैल्यू पुट की। यहाँ पे आर हमारे पास 7 है और एच भी हमारे पास 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 कट बाय दिस 7। ठीक है, 7 प्लस 22 मल्टीप्लाई 4 इज 14 प्लस 7। ठीक है, एंड 22 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7 इज 21, 22 मल्टीप्लाई 21 इज 462। ठीक है, तो अगेन वी कैन सी द सिलेंडर, इसका भी सरफेस एरिया भी ज्यादा है, हैंस सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम भी ज्यादा है और उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। सो दिस वाज द आंसर। So let's do third question. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and the volume is 900 centimeter cube. So हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी क्यूबॉइड की, उसका एरिया और वॉल्यूम हमें गिवन है। लेट्स डू। ओके, सो हमारे पास क्या है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी। हमारे पास जो क्यूबॉइड है नीचे, उसका एरिया होता है L मल्टीप्लाई बी, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, दैट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एल बी एच इक्वल्स टू 900, ये गिवन है, और इसमें से L मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, 180, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल्स टू 900। एच यहाँ पे आगा 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, सो 90 डिवाइडेड बाई 18 विल बिकम 5 मीटर आंसर। कैसे किया, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है वॉल्यूम और L मल्टीप्लाई बी होता है इसका एरिया। L मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमें पता थी, इसमें से H की वैल्यू निकालनी है, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल H आ गया। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। A cuboid is of dimension 60, 54 and 30. How many small cubes with each side 6 cm can be placed in the given cuboid? अब देखो, बड़ा क्यूबॉइड गिवन है, उसने कहा है कि छोटे कितने क्यूब, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है, एक क्यूब। यहाँ पे क्यूबॉइड है और हमें छोटे क्यूब कहते हैं, कितने क्यूब निकालेंगे, कितने क्यूब लगेंगे उसी के अंदर प्लेस करने में, क्यूबॉइड के अंदर प्लेस करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स डू। ओके, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 54 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 30 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बिकम 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो छोटा क्यूब हमारे पास है उसका वॉल्यूम क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ये मैंने कट क्यों नहीं की, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे कट कर सकते हैं इजीली, तो इसीलिए कट नहीं किया। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या होंगे, अब देखो इसके बड़े क्यूबॉइड के अंदर छोटे क्यूब आएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तब हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सी एवरीवन, 6 10 60, यहाँ पे तो पहले ही ये कट गया, फिर उसके बाद हमें पता है 6 9 54, ये कट गया, फिर हमें पता है 6 5 30, राइट, तो हमारे पास ये कट गया एंड में, दिस। सो 9 5 45 मल्टीप्लाई 10 इज 450, सो 450 क्यूब्स इज द आंसर, राइट। So let's do question number 5. Find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter cube and the diameter of the base is 140 centimeter. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है सिलेंडर की, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है और डायमीटर गिवन है। So let's do. Okay, this is the question. Volume of cylinder is 1.54 meter cube. Volume of diameter of cylinder is 140 centimeter. तो पहले हमने रेडियस निकाला, 140 डिवाइडेड बाई 2 70 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर क्यूब में है तो ये सेंटीमीटर में है, पहले हमने इसको चेंज किया। क्या हमें पता है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट, हमें ये पता है। तो अभी जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल एंड 7/10 विल बिकम 0.7 मीटर, राइट। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर की वैल्यू हमें पता है, पाई 22/7, आर इज 0.7, एच हमने निकालना है। जिस चीज की हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, 154 था, इसको मैंने लिख दिया 154/100। अब यहाँ पे 22/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सारे नंबर्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर अकेला h बच जाएगा। 22/7, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 डिवाइड, यहाँ पे 0.7 बन जाएगा 7/10,
10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड, अगेन 10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एवरीवन, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऐसे। अब देखो ध्यान से, ये 7 के साथ ये वाला 7 कैंसिल, ये दोनों जीरोस के साथ ये वाले दोनों जीरोस कैंसिल। उसके बाद इसको अभी 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से करते हैं। तो पहले चलो इसको 7 से कट करते हैं, 22 से बाद में करेंगे। 7 से कट करते हैं, यहाँ पे 7 2 14, अगेन 14 22, अब 22 सीधा डायरेक्ट 22 से कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। सो द आंसर इज 1 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हमें वॉल्यूम पता था, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एच निकालना है बस। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और एच निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्या किया? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 7 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, 22 डिवाइड हो गया। फिर इसके नीचे 7 अपॉन, ये 0.7 क्या होता है? 0.7 मीन 7/10, ठीक है। यहाँ पे 7/10 ही था ना, इसको 7/10 ही रहने दो, चाहे इसको 7/10 ही यहाँ पे लिख दो। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, राइट everyone? So 1 is answer. Let's do question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and the length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored. Okay, that can be stored in the tank. So how we will do this question? Question क्या है? A milk tank in the form of cylinder whose radius is this and the length is this. एक टैंक है, उसका रेडियस और लेंथ दी हुई है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। व्हाट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है जो उसके अंदर स्टोर कर सके। सो क्या होता है? सी इन दिस क्वेश्चन क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना मिल्क स्टोर कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स उसके अंदर स्टोर करना है, तो आंसर विल बी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। रेडियस सिलेंड्रिकल टैंक इज 1.5 मीटर, हाइट इज 7 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 1.5, दैट इज 15/10, 15/10, एच इज 7। ये 7 के साथ कैंसिल, 10 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 22 और 10 को, 22 डिवाइडेड बाई 2 11, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये 5 को 15 के साथ कैंसिल किया, 15 1 ज़ा 15, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 15 5 3 ज़ा 15, राइट। तो क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15, नीचे क्या बचा? 10, ये बन गया 495/10। अब 495/10 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वॉल्यूम, वो होता है 1000 लीटर्स के इक्वल। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई। 49.5 था तो 495/10 लिख दिया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 कैंसिल, ये बन गया 49500 लीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है, सिंपल। हमें बस वॉल्यूम निकालना था और उसको लीटर में कन्वर्ट करना था। सो लास्ट क्वेश्चन इज, इन ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। अगर कहता कि एक क्यूब है, उसका ईच एज, हर एज को डबल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास क्या है? लेट ईच एज ऑफ द क्यूब इज ए एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² और वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जब उसका एज हमारे पास a है और एज को डबल कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, देन द सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। a की जगह क्या आ जाएगा? अभी 2a², ये बन जाएगा 4a²। इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6a²। तो अभी 6a² क्या है? एरिया। तो कितने गुना? यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा ना 6a², एरिया तो था 6a², यहाँ साथ में 4 आ गया, तो इसका मतलब ये इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर एज ऑफ क्यूब इज डबल, देन अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम क्या था? a क्यूब, ठीक है। देन a क्या है? 2a, हमारे पास डबल कर दिया जब उसका, तो बन गया 8a क्यूब। अब a क्यूब तो है उसका वॉल्यूम, 8 साथ में आ गया, तो इसका मतलब ये कितना बढ़ गया? 8 टाइम्स। ये 4 टाइम्स, एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा और जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स बढ़ा। दिस इज द आंसर। फर्स्ट आंसर इज 4 टाइम्स, सेकंड आंसर इज 8 टाइम्स। सो लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट पेज पे एक लास्ट क्वेश्चन भी है इसका। This is the last question. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 1.108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. So क्या question है? So in this question, volume of reservoir हमारे पास क्या है? 108 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको पहले लीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। So 1 meter cube is equals to 1000 liter, right?
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हमें पता है, पहले हमने इसको लीटर में चेंज किया, 108 मल्टीप्लाई 1000 इट इज 108,108,000 लीटर। ओके, देन रेट क्या है, 60 लीटर पर मिनट हमें गिवन है। अब ये पर मिनट में गिवन है और क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, आवर्स में निकालो, आंसर आवर्स में चाहिए, तो हमने पहले इसको पर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो हमने इसको 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3600 लीटर पर आवर। ठीक है, वॉल्यूम रिजर्वॉयर का वॉल्यूम इतना है और रेट उसका है 3600 लीटर पर आवर। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर अपॉन द उसका रेट पर आवर का रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये 0 0 कैंसिल कर दिए, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 पे कैंसिल करते हैं। आई थिंक इट विल कट, ओके 2 पे कैंसिल करते हैं फर्स्ट, इट विल बिकम 540 एंड ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब नाउ ये हम 6 पे कैंसिल कर सकते हैं, 6, सो 6 9 54, 90 आ गया। ओके, एंड 6 3 18, अब 9 ये सिंपल हम 3 पे कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो आप किसी भी टेबल पे कैंसिल कर सकते हो, जरूरी नहीं जैसे मैंने पहले 2 पे कैंसिल किया तो आप डायरेक्ट 6 पे भी कैंसिल कर सकते थे। सो द आंसर इज 30 आवर्स इज आंसर। ठीक है, रिजर्वॉयर को फिल होने में कितने आवर्स लगेंगे, 30 आवर्स। So this is the exercise, last exercise of 11.4, 11th chapter everyone, 11.4, and if you have any query in these exercises, please contact me, and you can subscribe my channel Mathematics Prashar also. Thank you.